آج کے اس پروگرام کے بریفنگ کے لیے بڑے ادب کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا ہانریبل کونسلر آغا سید عباس رضوی صاحب کی وہ یہاں پر تشریف لا کر آج کے اس پروگرام کا بریفنگ کریں. شکریہ. قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم المقام جناب پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس ڈسٹرکٹ کرگل جناب حاجی حنیفہ جان صاحب، ایگزیکٹو کونسلر جناب پنسک تاشی صاحب، کونسلر صاحبان، پریزیڈنٹ سانکو جناب آغا سید عباس رضوی صاحب، یوتھ پریزیڈنٹ صاحبان، باقی خاص کر برادر عزیز سید رضا صاحب، ینتان امبنس کتنی کھونی یمبون کھنی شرما سنچے سرپنچ صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت نتون ازم سے دین اتفاقاً دیکھ سانیک سم دین مد نظر لینتن کرگل نسکت کھنی یچی مہمان و دون ینتن امبن نسکت کھنن گاما آنگا معذرت خواہد یہ دین جی فنکشن پر نارملی گا چاہا دیکھ منعقد بار گوشت دیکھ لگا بحثیت نیشنل کانفرنس جی ایری وائس ینتن گامی کا نام معذرت خواہ چلت لیکن ینتس ماپ بچا اچھا خاص ترچی ینتن جی کا بچے مسوم. لہذا ایز اے پارٹی وائس حساب ہے ایز اے پریزیڈنٹ حکومی مطابق دی پروگرام کو بہت دن سنن لگا چنگ کانٹینگل اسے آغا سید رضا صاحب نیم بگا چنگ کانٹینگل اسے خاص کر کونسلر ینتی سمایم خانی دلی غلام حیدر نے نسکوی محنتی کا ینتن گاما سپیرو پرولزر چین کیونکہ تنظیمی لازین کنفیوژن ہم اضافہ گوشی سپیرو کلیر بار گوشی کنفیوژن ہم تنظیم دلچا مین پروپاگنڈے کا تنظیم دلچا مین رائے لگایوت کھن کو یوت زربر گوشین رائے دل کھن کو دل زربر گوشین رائے با نینچات کھن کو نینچا یوت زربر گاتس لازدار گوشین دل تنظیم زرچا زین یہاں تنظیم چی کے درچا تاں سے ینگ آچی لگا سیریو زرے ینگ آچسنا می کنس کرما فابت زرے دو چوکلا بہلائی کو سلے بسے پارٹی دلچا مین نا گاری لائف یانونگا حقیقت بیان مزید بین اوسط اورجینلتی بین چھچین بحثت انگاری ذاتی ہیں ینتا. لہذا وقت معمولین ممت بریفنگ پنگل بین انگا بسین yang ngaci karpun saga patamet yang ngati misa ga patamet ngacang ne anti relation pe gocok sia somkhan khas khas ngad yang tak khos yani clear yang tak sperazar ne katur khoda yang tak dici tofik se debat deche ci consular ci yang tak se ngacang bacik khale consular pe yang las bacin ngacang umid so ground level ka garibi level ke khatwa let khani और ngacang umid pe khoda khom madad bas khoda ngacang madad bat khui jare ka yang tak ngaci relation chacho جس ذریعہ ینتی کونسلر وجود ہے سجاب نسوں چاہنے کھوں گاچاں ذریعہ ایک سوں ینتا پروڈکٹ چیبنگ لنکر سے ہونا اور گاچاں امیدو گاچاں باتی تھالے استاقپا ہمبائن ینت کھوری پورا کانسٹیچوئنسی کھوس تابیر بچن زرکھن کو. لہذا وقت مہم والین ما ایز ادری نیشنل کانفرنس یانو ینتا امبی چام چی پانچ یا جوائن باسکیت چدنا گاز ینتا خوش آمدید بچن اس خار کر گانا غلام حیدر نیم بو چی ریلیشن سونسن نیم بو دون گاما دی انکرول ازربار گشمت ناس کلی اسپرو with condition ہاں ترقیاتی یا کوئی یولیاں چی چھنچین کوئی محلیاں چی چھنچین لیکن جب بمو پانچ چین یوچان گچس بمو قرآن سا سنیں کامرہ چین جا خیوک دیا مدین کیوں چازن کھوکھنا چی چک چھان دیا گچس میں کھوں میں. لہذا انشاءاللہ ینتا امید دکچا گچی کا گچس و ینتی کا امید چکچا گچس نامی کنس کرما فاوزر بھی ینتا وعدا تانس پمیت جس برا رائن کنا پورا کلیر بار گوشن جب پارٹی مامو چین سوا نوکری تا چین سوا فنڈ تا چین سوا زمبائی کھوں چین سوا روڈ تا چین نچیس پرو ان سام چیک اے یلگاما اے کونسلر سکا اے پانچ سکا ینتا کتن ترکی کھوں لیون نچی کوشش پی نیتا دو بسے تھا لگا چن ترکی کھوں ستا آدھر کھن کو انشاءاللہ امید چیچی کچی کرگلی کا کونسلوں سے نچا اقتدار ہے درے اس پر نام سے مطابق پانچ سرپا جن کا کونسلر انڈر نام سے لاز بچے. دوسری بات انشاءاللہ رجحان مطابق باقی نہ خدا علاقہ سٹیٹ یا نام گورنمنٹ جو ہے اکثریت حساب انچی رجحان کو تھالے چھین کلی اس پر آدھوئی باقی نہ خدا کیا اپنے چی چھات در کھن کو یہ اللہ جانتا ہے. لہذا نت آغا صاحب نام سپر اگیم بچھات کرنا جاؤ در سے ینتن امبی نگران تھکھنی دے پانچ نگران تھکھنی دے شربار لنگاز جنس پر آدھر کھنی درینگا کھلوا گا کی پریزیڈنٹ ننگا چی تنظیمی عہددار گامی دون لنگاز در انسار کھون ننگا چی محایدہ دین کھون ننگا چی وعدہ دین کھون گالا شیانو اگنور میں بچا امبا
kung gala siya nor kaya pa misacha kung pansiona kung sarpansiona nala party level ke si chanda ka to de sabi ngatat parties ko ahmiyat ta cha parang ngas kaliya jarin sir party yo sin ni ka to parties de banda wala de bharat pala ahmiyat ta chin yani first ekta tamar koi progress report ta chin yanti progress report yo na ka to dare khas kar yanti ji leader dalin aga raja sa ngas kaliya lizer acha kansaran khona tichi main pu acha chichir gosin main pu agaraza clear sara agarazi progress hesaba yanta agaraza progress tana khod ngachi party yang chale duchmen khore hedo khara kherer tachi ngachi party usul pojana ga chichir progress tane ka tum de mi la ngachi progress mana team atia khuri progress hesab oda khod ba khod uske हाथ में आ जाएगा लिहाजा इंशाल्लाह वक्त ना वाले नमत यंता थारीन इसके उत्खान दपसी तो है साइड तो रस्सी में इंतक लन मर्जल चंद कतुन मेहरबानी माफ बचा चा वक्त पसंद तासुं मेहरबानी लिहाजा यंता जिया इसके यंता संखोल्लास पर ताचा ngachi पार्टी होदार ने संखोल्लास पर ताचा कन्फ्यूजन है मिजा चा तान खान बोल दान चेंजू मिलतान खान बोल दान चेंजू इंशाल्लाह लेकिन उम्मीद है यंता सं उम्मीद जो पार्टी का ले बने तिपला ngachi सं जान ताचिन यंता सं कुर्बानी ताचिन इंशाल्लाह ना उम्मीद को खुद इन ngachi जो उम्मीद बेगा यंता ngaman ngachi साथ ताचा ngachi सं यंता साथ ताचा गाला शियों ने कतुम ngachi पार्टी लेवल का ngachang ngama लोग से बात बोला त्यार खास कर यंती काउंसलर साहब ये ngachi ते क्लियर जब खो देते चिंगमीन बाखन पास ताचिन खो दुंगा जर खने या फागा जखना चाहे लो लेवल का पांच कने भी से काउंसलर के लेकर इंदे इंशाल्लाह ngachang कोई को उम्मीद पार्टी लिहाज का गाला शियंता उम्पी पूरा कंस्टिट्यूएंसी yang tamti servas kyo tyodna yang tangama mubarekin khas कर तंग कांग्रेस या नहीं हो सकती yang पार्टी चाहे हो सकती क्लियर सर जो पार्टी तरह ने अहमियत छाम प्रकोशा जिन लेकिन हम कांग्रेस से जो दिन दिया हो सने आज के यहाँ चेक हटाता हूँ लिहाजा दो yang tertarik दो मिसाल चिकोना पार्टी इमेज खराब इसकोना रंग खराब चला yang ता चीम माडिक न कतुम ngati ka dug swada je revise hesab hai national conference baki yanti bulage sadir aga sahib nimol chief harya chukuro no molcha telephone bacha ngata don suso share base matang ngata mata masala har chhaseminde शुक्रिया respect yantang kargil president sahib yantang gama nyambot ko karne khas kar media hazrat dona yantang riyan na acha photo session पर already ngati ta है briefing बचिन खटास जो है हमने बाद में देना है क्योंकि लास्ट वर्ड्स ऑफ थिंग के बाद हमने सिस्टम वही रखा है उस पर जो है आगा राजा सर के सदारत में यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहा है आज जो उम्र के जो जितने भी पंच है या सरपंच या कोई ओहदेदार हो इंशाल्लाह हम इनको बाद में फॉर्मली तहत हमने लास्ट वर्ड्स ऑफ थिंग के बाद हम ये सिलसिला शुरू करेंगे हमने सोचा पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें पहले हम अपना फरियाद दे दें इनके साथ हमारा क्या ये रहा है वो सब हम आपको भी करने के लिए सब कुछ बताया है वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं दावत देना चाहूँगा कंसर्न काउंसलर गुलाम हैदर साहब को कि वो आज के यहाँ पे मौजूदा लोगों के साथ अपना कैसे ये प्रोग्राम बना और कैसे इस हद तक पहुँचा इसके बारे में तफसीलन बताएंगे गुलाम हैदर साहब। शुक्र है कि नियम दूसरे से दाहियत खाने मिन मार फिर भी ngas चुक nga digana gintana election la चुक मुहिम अच्छा तना आराधा साहब नियज़ जो यारान जो ngas opposition party kana nga जरिका की दगी लेने nga यारों ने बहुत ज़रूरी करा आराधा का ना बहुत खाने और आराधा हमेशा देखना nga नस्ता तंची यूरे ना बिलिंग ना था इंशाल्लाह यंतर क्वीन नी kana एक उम्मीद चीज़ होते nga यंतर बिलिंग ngati सीसी साहब यारो मैं पाना देख लिया इसके तो मैं मेरा सीसी आया हूँ यारो दावत तांसी पहुँचा फिर बाकी क्वीन साहब देंगा ना बहुत लाखों चितां से नेशनल कंपेटिशन ग्लोबल बस ना गा सुची चीज़ बुई के चना एक उम्मीद चीज़ हम चचिन भी मी करना चीज़ी टॉप टू सबसे याद आते उम्मीद के का दी उम्र पे हरे भगवान जवान उन गाना मयों से मेहरबानी ना जनता है बाकी तफसीलान आगा अब्बास रज़वी साहब जस ngacha बहुत से दिनों से ngacha आगा राजा पाना दी जवान उन ngacha कांटेक्ट में लिहाजा कोई उम्मीद रहे तो ngaस पाना दे आगा साहब जस ngacha चंग देंगाता मेन खानी वादा झूठा वादा ngaस देतना बात खुद आगा राजा साहब पा उम्बई शर्मा साहब पा सगा पता इंगा झूठा वादा माना तांचे में किधर nga वोट को तांचे में nga ज्ञान खान को ड्यूबे फिन जरा nga बिल्कुल वादा बस खाना में अब दे इन्ना nga शर्मा ना जवान ना जलिन ज्ञान में हिसाब को इंशाल्लाह nga कोशिश बचिन सा तो कोशिश बचिन ngani na khama marta na jalti last na tarkati meni fianga 10 bache in jaringa ko wari ka se de wari ka ngari ta na president sahaba
Kontok Rashi Sahib, Agaba Sahib, yang ngatang bargala songser da shatang ajanta rupiasin di umba pi faryat pi gagaw waqachi kan ti na mehrabani dolo ente santaja baki nga ne agaraza sahib na di ngati panch sahibullah ngat ngari smiti na ngat mubarak bagi tenya tangul kam jar ja waqat umet panadum sayanta tafsilan fi kenu ngata zarone kya zarona ek umet chi wasat inshallah rahman pada ngi ga rubayan uksto yoti man punga janti har faryat farat nga konsel na contact charge na state level ke charge na gar level ke charge na inshallah na tikya warmani taja din Allah wasal bajaye baki yanda na wala mabas yanda yanti to road di bijli leti barang nga chok muhim acha tana aur yanti to tawari mina तो कशिस्तार में पता है कि अच्छा यंता जीवित हमारे फिर गाता को अच्छा परम लेंस दर्शन को और यंती बिजली फिर इंशाल्लाह ना मुतार को ना अच्छा दिन बस दूँ गम महल बस दियो तो कोई यंती दूँ ले छोटा छोटे मुश्किलात यंती डिमांड का तो दूँ या छोटा मोटा इंशाल्लाह यंचा तो फिर बिंगा जनता पक्का वादा तांसो में यंचा तो इंशाल्लाह आरी हंसा बिंगा उम्मीद है दूर इंशाल्लाह ना जनती दे उम्मीद पे का लास्ट बस दूँ गम इंशाल्लाह यंती दे मानो ना पूरा बोक बाकी यंते संग अच्छा इंशाल्लाह यंता गम गाचे ना बस आता मोशिंग अच्छी खुशूसन दिया अगराजा यंती कोई का नाम शी और ना बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो वेलकम कर रहे थे not taking much of your time I would like to invite one resident from Umba Habibullah sahab for a few words please कौंसलर साहिबान अगरदा हमारा का जो उसके बाद में हमारा जो फ्यू डिमांड्स है जो हमारा रहा है बहुत पहले है हमारा पहला जो डिमांड है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ उम्बा है ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो गांव है ये यहाँ से 12 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है सांगू हेडक्वार्टर से तो 12 किलोमीटर में हमारा आज तक बिजली नहीं है इसलिए हम आए हैं कि अब हम एनसी ज्वाइन कर रहा है इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ उम्मीद लग रहा है कि ये हो जाएगा सेकंड डिमांड हमारा जो अगर छुटुक ये बिजली आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें सीधा हमें छुटुक प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना चाहिए ये हमारा मांग है अच्छा जो हमारे यार हमारे 2-3 महल्ले जहाँ पे इरिगेशन वाटर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम शर्मा में तो हमें उस पे एक कूल का नाम दिया है सरा और शेरपोथांग तो मलिक भर ये हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके हम डिपेंड पूरा हम कल्टीवेट पे डिपेंड है तो हमें ये कूल होना चाहिए किसी भी सूरत में अच्छा सर हमारा सेंक्शन ऑफ फूड ग्रेन है अभी हम 7-8 किलोमीटर दूर से हमें फ्रूट ग्रेन के लिए जाना पड़ता है तो हमें वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मांग है जो होना चाहिए अच्छा सर मेंटेनेंस ऑफ PMJSY रोड जो हमारा मिज़त टू मलिक भर है ये ऐसा रोड है जहाँ पे अभी बस नहीं जा सकता है तो PMJSY का रोड है हमारा बस टिपर नहीं जा सकता है एक लिंक रोड से भी बदतर है अभी तो ये इसका हमें मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा लाइफ लाइन है सर्दी में हमारा पेशेंट अच्छा बुजुर्ग और औरतें को मुश्किल से ये जाना पड़ता है उसको अच्छा सर दूसरा हमारा है ओपनिंग ऑफ डिस्पेंसरी मोहल्ले में कोई भी मोहल्ले में दे दो हमारा डिस्पेंसरी होना चाहिए क्योंकि अभी एक ही सिंगल एक डिस्पेंसरी है जो बहुत दूरी पे है अच्छा सर 6 है हमारा ओपनिंग ऑफ वेटरनरी सेंटर जहाँ पे मवेशियों के हमें भेड़ बकरियों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे दवाई के लिए क्योंकि हमें अगर कोई सर्दी में अगर कोई भेड़ बकरी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सीधा मर ही जाता है क्योंकि ये सेंटर ज़रूरी है इसलिए मैं यही हमारा जो मांग है अगर हो सके तो हम मेहरबानी करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि इस पर गौर करें बाकी सबको थैंक्स हमारे प्रेसिडेंट साहब को भी थैंक्स शुक्रिया हबीबुल्लाह साहब तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको इस प्रोग्राम की ब्रीफिंग क्योंकि लास्ट में होगा जो फॉर्मली ज्वाइनिंग होगा खतक सेशन है ना बस लास्ट में होगा वो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था कि लास्ट में होगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो हमें जिनके क़ियादत में हमारे PRI मेंबर्स हो या बाकी बुजुर्ग हो उन्होंने ज्वाइन किया है उनके शान में तुनवी बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब तुनवी बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए तो मैं बड़े
इज्जत के साथ दावत देना चाहूँगा जिनके क़ियादत में आज का ये ज्वाइनिंग हुआ है आगा रज़ा साहब को कि वो अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजें। आगा रज़ा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा साहब, JKNC पार्टी यूथ प्रेसिडेंट अब्दुल साहब और हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, तमाम हल्कों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उम्मा के तमाम अवाम और उम्मा के तमाम अवाम, छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं एक 22 साल लड़के को उन्होंने इतना एक काबिल समझा कि कैंडिडेट, सरपंच के कैंडिडेट के लिए उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, हम उनका भी जिन्होंने मुझे वोट दिया, दोनों का। और जमहूरियत की खूबसूरत मिसाल कायम रही इस साल, हर साल की तरह उम्बा में। दूसरी बात रही पार्टी की बात, तो आगा अब्बास साहब सबसे पहले और हमारे काउंसलर साहब, ये दोनों ही मेरे साथ शुरुआत से लेकर डे फर्स्ट से लेकर अभी तक मेरे साथ शाना बशाना, जहाँ भी मैं मोरली या मेंटली सपोर्ट के लिए ज़रूरत हो तो वो कभी भी मेरा फ़ोन, कभी भी मैं उनको फ़ोन करूँ, चाहे 12 बजे हो रात को या दिन के कभी टाइम हो, मीटिंग में हो, कभी भी मेरा फ़ोन अटेंड करके मुझे सपोर्ट किए। इसका मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक जवान के ऊपर, एक जवान के सोच के ऊपर आप लोगों ने लब्बैक कहा, जैसे लीडर्स ने लब्बैक कहा करके, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पार्टी में, हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी में ऐसे लीडर्स, रोशन फिक्र लीडर हैं। इस चीज़ का मैं फ़ख्र करता हूँ। तीसरी बात, जैसे कि आगा अब्बास साहब ने बताया कि चांद तारे तो हम तोड़ के आपको नहीं दे सकते। जनाब, हमने हमारे जो पिछले काउंसलर थे उनसे भी हमने कुछ चांद तारे तो नहीं मांगे। हमारी मांग जो थी इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे कि हबीब साहब ने भी बताया, और टावर की मांग, यानी आज 21st सेंचुरी चल रहा है। हाजी हनीफा साहब और ये सब हमारे कुंजो रशीद सर, जो खुद ही एक बैकग्राउंड से एक इंजीनियर है, वो अहमियत समझ सकते हैं नेटवर्क का, कि एक नेटवर्क का क्या अहमियत होता है एक इंसान के लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक वर्कर के लाइफ में नेटवर्क का क्या अहमियत होता है। वो नेटवर्क से आज तक हम लोग महरूम हैं। हमें आज तक पार्टी के नाम पे सिर्फ खोखले दावे दिए गए हमें, और वादे किए गए, झूठे वादे किए गए, हमारे पब्लिक को, तमाम पब्लिक को अंधेरे में रखा गया। इसी चीज़ के खिलाफ मुझ हकीर और नाचीज़ ने आवाज़ उठाया था सर, और 224 लोगों ने आकर उस आवाज़ पर लब्बैक कहा। जमहूरियत सर, हार जीत तो चलती रहती है। मुझे उस पर कोई नाज नहीं, कोई नुकसान नहीं कि मैं हार गया हूँ या कुछ किया हूँ। मेरा एक जिम्मेदारी बनता था एज ए यूथ अपने गांव में एक आवाज़ को उठाने का, एक कोई चीज़ जो गलत चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, और वो मैंने उठाया। और मेरे पीछे जो खड़े थे हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब, हमारे आगा अब्बास साहब, जो कि एक भाई से ज़्यादा अजीज़ है मेरे को, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में, इस तहरीक में मुझे पूरा सपोर्ट किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको। और तीसरी बात, चौथी बात मैं ये कि आप सबके सामने रखना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि 4 हलकों से, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी पंच हमारे साथ हमने उनको कन्विंस किया है, और हमारे आगा अब्बास साहब और हमारे काउंसिल साहब उनको मिलाया है। उनसे पहले उन्होंने मीटिंग करने के बाद ही, सोच विचार करने के बाद ही, क्वेरीज करने के बाद ही उन्होंने फैसला लिया कि आज हम जाकर के ऑफिशियली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को हम ज्वाइन करें। पहला मरहला, पहला मोहल्ला शिलावर, मलिकबार टी, मलिकबार के और मसरजुक, जिनके पंच साहिबान सारे यहाँ पर मौजूद है। एक लेडीज है जिसके आगा साहब ने फरमाया, वो अभी नीचे है। इसके बाद हम आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते सर, लेकिन जितना भी हमारे गरीब गुरबा आवाम या जहाँ भी हो, उनके फरियाद पर आप पहुँचे, मेहरबानी। हमारे प्रेसिडेंट साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे काउंसलर साहब अब्बास साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि समर में मेहरबानी एक दौरा आप भी लगाए हमारे गाँव में, हमारे गरीब आवाम के बीच में आकर के आप लोग भी हमारे गरीब आवाम की मांग को सुने, उनकी कुछ आवाज़ सुने, उनकी कुछ दर्द सुने। क्योंकि आज तक जिस पार्टी को हमने सपोर्ट किया, जैसे कि आप सबको बखूबी मालूम है, पिछले बार तक हमारे काउंसलर साहब एक कांग्रेस को सपोर्ट किया था उन्होंने। 2.5 साल तक सरकार जब तक नहीं बनी थी तब भी हमारे काउंसलर साहब ने समर्थन नहीं दिया अपना, फिर भी हमने उनको सपोर्ट किया। चूँकि हमें एक पढ़ा लिखा आदमी को हमने सोचा कि एक सपोर्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, जैसे कि हमारे आवाम ने सपोर्ट किया था उनको। मैं तो उस टाइम पे वक्त पर प्रेजेंट भी नहीं था, और चूँकि मेरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग हमेशा बाहर से ही हुई है। उसके बाद हमें क्या मिला आप सबके सामने है। आज भी उम्बा में टावर के नाम पे सिर्फ कागज़े और डॉक्यूमेंट्स, लाइट के नाम पे सिर्फ बोलते हैं कि इसमें इशू है और इसमें ये क्लैश हुआ है। हमारे काउंसलर साहब गुलाम हैदर साहब से जब मैं मिला था उनकी कैंपेनिंग के दौरान,
अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने पार्टी के लिए मैंने 1 रुपये उनसे ना मांगा है, ना इंशाल्लाह मैं मांगूंगा। मैं गांव के लिए निकला हूँ, गांव की आवाज़ को लेकर के निकला हूँ, गुलाम हैदर साहब की सोच को देख करके निकला हूँ, उनका सपोर्ट किया हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है और मैं पूरा उम्मीद के साथ, हम सारे एक उम्मीद लेकर के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं और हम ये चाहते हैं कि इस उम्मीद को आप भी बरकरार रखिए और हमारा जो रिलेशन है वो आज जो शुरू होने जा रहा है ये एक हेल्दी रिलेशन रहे, आप भी हमारे आवाज़ पर पहुँचे और जब भी हमारी ज़रूरत हो, आवाम की ज़रूरत हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उम्बा के अवाम ऐसे भरोसेमंद अवाम है कि आप रात के 12 बजे अगर आप हमारा फ़ोन उठाएंगे तो 12 बजे हम भी आपको मदद करने के लिए कहीं भी हमारी ज़रूरत हो हम आएंगे। बाकी ज़्यादा लबकुशाई करने की मेरी ना औकात है ना मेरी हैसियत है। आप लोगों ने इतना इज़्ज़त दिया मुझे, आगा साहिब ने इतना इज़्ज़त दिया, हमारे काउंसलर साहब ने, टशी सर ने, या हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब ने, यूथ प्रेसिडेंट साहब ने, आप सब ने मुझे इतना इज़्ज़त दिया यहाँ बुला करके ज्वाइनिंग के लिए, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं हो रहा है उनके जेल में शेर अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दावत देना चाहूँगा ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर टशी साहब को कि वो इस गैदरिंग से मुखातिब हो। हमारे सीनियर लीडर अब्दुल साहब को ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट आगा अब्बास साहब, हमारे उम्बा के नौजवान लीडर आगा रजा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर साहिबान और बाकी उम्बा से आए भाइयों सबको जुले अस्सलाम। काफ़ी खुशी का मुकाम है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को देख के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को देख के, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को देख के आप लोग इतने तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से ज़ाती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर। और खुशी इस बात की है कि खासकर आगा जैसा एक नौजवान एजुकेटेड यूथ हमसे जुड़ रहा है, इससे हमें भी फ़ख्र और हमें भी एक ताकत मिलता है। यूँ तो आप सबको मालूम है कि इस पूरे इलाके में, खासकर सुरू इलाके में, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभर रही है। इस काउंसिल में हमारा 5 काउंसलर आपके यहाँ से है, फिर जांस्कर से भी है, तो इसको और ताकत देने के लिए और कारवां जुट रहा है। तो इससे हम सबको जो है ना काम करने की एक सलाहियत और काम करने के हमको भी एक नया जोश हमें उम्मीद है। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी काफ़ी काम है इस डिस्ट्रिक्ट में किया है, इस इलाके में भी किया है। आगे इस वक्त के काउंसिल जो कोalition सरकार हमारे काउंसिल में कांग्रेस के साथ हमने एक वो किया हुआ है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीसी साहब भी है, काउंसिलर हैं। हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं जितना हमसे हो सकते हैं आप लोगों की उम्मीदों पर उतरने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट काउंसलर साहब नहीं होगा, आगा साहब नहीं होंगे, आप सब हजरात कभी भी जब भी चाहे हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी काउंसिल में मैं कर रहा हूँ। तो मेरे से आज तक की जो मेरे एक अपना एक्सपीरियंस को लेके करके जितना काम हम लोगों ने काफ़ी आज तक किया हुआ है, पिछले 10 साल से हम लोग काउंसिल में हैं, तो मैं आप लोगों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, काफ़ी एक दूर वो रहता है, तो सब मिल के एक दूसरे को पता भी चल गया। आज एक इंटरेक्शन के ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों से मुखातिब होकर जानने का ये मौका मिला। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन कभी भी जब भी आप लोगों की कुछ भी काम होगा, किसी भी मसले को लेके, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके, हम हमेशा करके मैं आप लोगों के काम करने के लिए तैयार है। वादा आप लोगों को देना चाहूँगा और बाकी डिमांड आप लोगों को रहा, ये डिमांड हम सीसी साहब तक पहुँचाएंगे। इसके बावजूद जब तक डिमांड का फॉलो अप नहीं होते हैं तब तक डिमांड कभी नहीं बनते हैं। हम सबको हमको ये एक एक्सपीरियंस है, जब तक हम पीछे नहीं लगते हैं तब तक हमारे इलाके के काम नहीं होते हैं। इसी तरह आपके मोहल्ले के काम में आपके पंच को आगे निकालना होगा, आपके पंचायत हल्के के काम में सरपंच को आगे निकलना होगा, आपकी पूरा काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसी जबकि पूरा उसमें लंकर से लेके उम्बा होगा, आपके काउंसलर को होशियार होने की ज़रूरत है। तो हम सब जब तक एक टीम के साथ हम लोग काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ने वाला नहीं, आपके इलाका भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये इलाका भी आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी उन चीज़ों के से रिलेटेड खासकर हमारे इस इलाके के एमएलए हमेशा जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें शायद उम्बा भी होंगे उसके साथ, हम लोगों ने वोट दिया था, बहुत मेहनत किया था। लास्ट एमएलए जब अबाकर साहब को हम लोगों ने उठाया था,
हमने भी संस्कार से पहले बार हम लोग अंजुस दोनों ने यहाँ से आप लोग कभी कोई भी वहाँ पे कैंपेन के लिए नहीं आया था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके आगा साहब को वोट दिया। कांग्रेस वालों ने आगा साहब को बूथ जैसा बना के फोटो वहाँ पे संस्कार में चस्पन किया है। सच्ची की बात, हकीकत एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन हमको दुख है इस साल आगा साहब ने संस्कार को 1 रुपये नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसिलर CDF के फंड से। 3 करोड़ में से अगर हमको 1 रुपये नहीं मिलता है, उससे और दुखी की बात क्या है। इसलिए हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी देखो संस्कार से खड़ा करें, जीतने की उम्मीद नहीं है। आप लोग आगे से इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब भी इलेक्शन के लिए आप लोग MLA खड़ा करेंगे, अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने दुनिया देखा हो, जिसने जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उसने बात करने है, करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करना है, लद्दाख खत्ते की बात करने है, हमारे इलाके की बात करने है। ये नहीं क्या करगिल काउंसिल में नहीं भेज रहे हम लोग, पंचायत नहीं बना रहे, उसको एक MLA बना रहे हैं। ये मेरे आप लोगों को जाती रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा खासा एक विजनरी लीडर को आप लोग को खड़ा कीजिए। हम हमेशा इस पार्टी में जब तक हम नेशनल कांफ्रेंस आएंगे, हम उससे ये उम्मीद भी करते हैं कि पूरे इलाके को बिल्ला उसके क्या कहते हैं जात पात और रिलीजियस उसके फैक्टर को ना देखते हैं इस इलाके, क्योंकि इस इलाके को आगे उठाने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको पता है कि पसमानदा इलाका है, अभी अंडर डेवलप्ड है। उम्बा की बात करें, अभी वहाँ पे टावर भी नहीं है, रोड भी नहीं है, बहुत सारे चीज़ों से मतलब बेसिक नीड से हम लोग महरूम हैं। उन चीज़ों को आगे करने के लिए MLA की बहुत बड़ा रोल रहता है जम्मू कश्मीर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने देखा है तो उस असेंबली में जाकर लड़ने की जरूरत है। असेंबली का इलेक्शन में नेक्स्ट ईयर आ गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आ गया, तो हम लोगों को तैयार होने की जरूरत है उन चीज़ों के लिए। जो तो बहुत ही इज्जतदार लीडर आगा सईद अहमद साहब भी हमारे बीच तशरीफ आए हैं। इनका भी बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है जम्मू कश्मीर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जब ये थे, इन्होंने अपने ज़ाती तौर पे काफ़ी डिमांड को इन्होंने उठाया, आप सब लोगों को मालूम है, जिसमें ये रीजनल स्टेटस एक उसमें से एक बहुत बड़ा लद्दाख के लिए डिमांड था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने उस वक्त पास करवाए थे। लेकिन आज ले और करके लड़ रहे हैं रीजनल स्टेटस को लेके। कल तक वो कहीं भी नहीं था, हम सबको मालूम है। आज तक तो सेंट्रल क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी गवर्नर ने वो किया है। करगिल में जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, करगिल हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। करगिल में चाहे सरदार हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, इस डिस्ट्रिक्ट करगिल में अगर 4 रुपये आएगा, उससे जाके हम सबको उसका एक हिस्सा मिलेगा। इसलिए हम सबको डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ने की जरूरत है, चाहे वो रीजनल स्टेटस का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोई भी कॉमन इश्यूज है, उसमें हम लोगों को अलग होने की जरूरत नहीं है, उसमें ले और करगिल लगाने की जरूरत नहीं है। हम करगिल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट की मुफाद के लिए आप लोगों के साथ रहेगा। ये हमारा आप लोगों को आप लोगों को वेलकम करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में आगा साहिबान से हम हमेशा डिस्कस करते हैं, इनसे भी हमारा सलाह मशवरा रहता है। हम इनको भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के, ये आगा राजा जैसे, हमारे तौहिर सागर जैसे लोग, हमारे एडवोकेट आशिक जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, इनको पार्टी में लाने की जरूरत है। इनकी वॉइस आजकल डिजिटल का दौर है। आजकल जो ना हर कोई बहुत सारी चीज़ जो ना वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बाकी चीज़ों के माध्यम से जो ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं। इनके लिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइमों में इस सुलू इलाके में संस्कार से लेके हमारे संस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी यूथ लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो ना आगे अपने मसाइल को लीडरों तक, काउंसिल तक, गवर्नमेंट तक लेने की जरूरत है। इसलिए आप लोग भी आगा साहबान को साथ दे के इनके यहाँ निगरानी में, इनके सुपरविजन में आप लोग काम करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फुलेगा। इसी चंद उम्मीदों के साथ आप लोगों का फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ। सबको शुक्रिया वजूद। Leader of National Conference and current Executive Councillor, we have lot of expectation from you sir. हमें बहुत से तवक्कात आपसे वाबिस्ता है। उन्होंने अभी कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे हमें मुत्तफ़िक़ होकर लड़ने की ज़रूरत है। जो हाल ही में कुछ ऐसे डिसीजंस आए हैं, मैं यहाँ पे पार्टी का ये मीटिंग है, उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे मुद्दों पे हमें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आके लड़ने की ज़रूरत है। तो फिर हमारे आगा से ऑनरेबल काउंसलर और जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सईद अहमद साहब अभी पूछे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रिए ख्यालात से नवाजें। आगा साहब शुक्रिया। आप लोगों का वक्त नहीं लेते हुए मैं चंद जुमला आज की इस सेरेमनी में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे बहुत इंतहाई खुशी है कि आज हमारे उम्बा से हमारे यंग लीडर जो
ताज़ा मैदान में वारिद हुए हैं आगा सैयद रज़ा साहब, इनकी क़यादत में हमारे उम्मा के जो भी जवान जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया, इनका मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से दिल की अमीर की जानिब से मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ बानफ़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इस रियासत में किसी पार्टी के साथ तो जुड़ा रहना चाहिए। पार्टी के बगैर हमारे लोगों का काम नहीं हो सकता है, हम सब इत्तेहाद हो जाएंगे। इसीलिए बहुत से मुकर्रिरीन ने हमसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करने लगा, तो मुझे उम्मीद है उन्होंने आप लोगों की खिदमत में हमारी पार्टी के सिलसिले में हमारे जो खिदमत आज तक अंजाम दिया है उनके सिलसिले में और कुछ करना है आइंदा आने वाले मसलन ज़माने में न्यू जनरेशन के साथ किस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएंगे, उसके बारे में आप लोगों को ख़ुसूसन मैं जिस वक्त यहाँ पर आया तो हमारा ऑनरेबल टिशी साहब तकरीर कर रहे थे, तो आप लोगों के सामने रखा गया। मुझे उम्मीद है कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेने के लिए जिस तरीके से टिशी साहब ने आप लोगों के सामने बयान किया, हमें इत्तेहाद होने की ज़रूरत है, हमें जज्बात और शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस कौम की खिदमत करने की ज़रूरत है। हमें बाकी कौमों के सामने भी हमें उठना बैठना चलना बाकी कौमों के साथ भी किस तरीके से इस मसलन जनाब अली मुल्क में, इस रियासत में, इस डिस्ट्रिक्ट में हमें किस तरीके से चलना है वो हमें जानना चाहिए। और इस तरीके से हमने इस साल की 2018 कौंसल जब इंतखाब हुआ तो हमने चाहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में आज तक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। हमने इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेने के लिए हमने कुर्बानी देकर दो मेजर पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी का हमने कोलिशन किया कि हमारे लोगों की मसाइल जो है जो ठोस मसाइल है, इंशाअल्लाह हमने एक हफ्ते पहले हमारे ऑनरेबल सीसी साहब की चेयरमैन क़यादत में हमने दो रेजोल्यूशन पास करके दिया जो हमारे लद्दाख खत्ते के लिए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत था। उस पर हम पूरे पार्टी जो है सब सियासी पार्टी हमारे सीसी साहब की क़यादत में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हमारे करगिल का। साथ ही हमने रीजनल स्टेटस के लिए भी हमने वहाँ पर सिमोक वाले भी आए थे, उसमें भी हमने ये किया और रीजनल स्टेटस के लिए भी हमने रेजोल्यूशन पास किया। इस तरीके से हम लोग बाकी आप सब लोगों को मालूम हो जाएंगे कि कौन से पार्टी या कौन से लोग जो है लोगों का खिदमत करते हैं, जो हमारे साथ वादा करते हैं वो हम उस पर उतारने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, वादा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना गुनाह भी है इस्लाम के नुक्ते नज़र से। जो हो सकता है ये एक पार्टी जो है हम इस पार्टी को अपना सियासी पार्टी हमने थाम लिया, इस पार्टी में रहकर हम कोशिश करेंगे, हम वादा नहीं करेंगे हम आपको ये दे देंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट में फराहम करेंगे, आपकी बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, आपके बिजली और पानी के मसाइल तक हम बिल्कुल ये करके हम इस तरीके से वादा देने वालों में से नहीं हूँ। मैं वादा ये देता हूँ कि मैं कोशिश करने की वादा देता हूँ, हम सरतोड़ कोशिश करेंगे जब तक कि हमारे पूरे टीम जो है डिस्ट्रिक्ट की कमेटी के टीम या हमारे ब्लॉक सतह पर टीम बताना बताना हमारा कुछ काम नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे उम्मा के नौजवान जो है वहाँ से इस उम्मीद पर और आगा सैयद रज़ा साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंजीम को आपने अपनाया और इसमें आप लोगों ने ज्वाइन किया। आप इस उम्मीद से है कि इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ और हम सब मिलके अपने लोग गाँव की तरक्की, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरक्की में हम दिन रात इंशाअल्लाह अल्लाह के सहारे लेकर हम काम करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ लोगों में भी आप लोगों का इंशाअल्लाह हमेशा ये रहेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब हाजी हनीफा साहब से भी हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल टशी साहब से भी हमारा रिक्वेस्ट है, इन लोगों का काम
ये जो बैकवर्ड एरिया है, इस वक्त उम्बा में बिजली भी नहीं है। आज तक 21st सेंचुरी में भी वहाँ पर इस वक्त शुतु से कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरीके से कि गाँव को डेवलप करने के लिए भी सब मिलकर इनका हाथ बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। शिलाबारी पंच बिल्कुल बिल्कुल Jarcho, अच्छा सूर्या Momosoria, Road Magdine Duxar Shilabari, Baki Duxar Chilim Hinsing Kabristan, Baki Sutaria Astana Tamirano Jnabaga Said Alia Shilabar, Baki Russian Store Baraya Shilabar sir, Maramate Pipeline sir, Sunuk Kalinia sir, 2 PM जैसा हर साल छात्र सर पास प्रैक्टिस से आप करवा भी सकते हैं सर टैक्सी सर ये थोड़ा आप ये करना पड़ेगा जिसको मालिक भरना जिसको ये अच्छा विचार देगा जिसको कलीनेस रहता है तो हमारा पास प्रैक्टिस है सर यार बाकी तो वेविंग सेंटर है दुख सर यार जिन संघ समेत कंसर्न काउंसलर साहब की दादी ये दरख्वास्त काउंसिल में पहुंचा शुक्र दीदी आपकी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि बाज़ाब्ता खतक पहना कर उनका स्वागत करें। सबसे पहले रजा साहब आगा सईद रजा साहब जिनके क़यादत इसके बाद कि सईद काजिम पंच साहब प्रेसिडेंट साहब नेक्स्ट है अर्चो सूर्या नेक्स्ट पंच है पार्टी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है सर मोहम्मद पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक भट्टी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सभी मीडिया हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आके यहाँ पे कवरेज करके हमारे इस प्रोग्राम को आगे तक ले जाने की ज़हमत उठाई। अच्छा, किस पार्टी को छोड़ के आ रहे सर, उसके लिहाज से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें सारे पार्टी के तकरीबन लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, हर पार्टी से, चाहे वो PDP से आए हों, चाहे वो BJP से आए हों, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए हों। सारे पार्टी से आकर के हमने ये फ़ैसला हमारे 4 पंचों ने लिया है। हमारे काउंसलर साहब और अब्बास साहब के सरपरस्ती में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्ती में इनसे बात करके काफ़ी सोच विचार के बाद आज ऑफिशियली हमने 4 पंचों के साथ जो है हमने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और को ज्वाइन किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सामने और वाइस प्रेसिडेंट के सामने और ब्लॉक प्रेसिडेंट के सामने हमने आज यहाँ पे सांकू में ये ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने का मकसद बस यही था कि जैसे कि हमने आज अभी इससे पहले आगा साहब ने फरमाया कि झूठे वादों के साथ ही हमें आज तक जिस पार्टी ने भी हमारे उम्बा में दौरा लगाने के लिए आए, हमें वादों के नाम पर और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर और साइट सीइंग के नाम पर सिर्फ धोखे मिलते रहे। और हर पार्टी से जो है हमें उम्मीदें थी, जो भी पार्टी के लीडर्स हमारे सामने आए उन्होंने हमें वादा दिया था और काफ़ी उन्होंने हमसे वादे किए। और मी एज ए यूथ मेरा क्या रोल बनता है इस इलेक्शन में, इन पॉलिटिक्स में और मुद्दों को उठाने के लिए मेरा यही रोल बनता था कि जो भी लीडर्स मुझे ये एश्योरेंस दिलाए कि हाँ जी हम आपके लिए काम करने के लिए रेडी है, और ना ही सिर्फ बातों में, ना ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, बल्कि अमली ग्राउंड ज़ीरो पर आकर के मेरे साथ जो खड़े रहे, इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ऑफिशियली जो है
नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हमने ज्वाइन करी है सर। कितना उम्मीद है एनसी से आपको? उम्मीदें तो सर देखिए हर पार्टी से हमें बहुत थी, और पिछले भी जैसे कि हमारे एक्स काउंसलर साहब थे, एक्स एग्जीक्यूटिव। आपको एक बात मैं ताजुब की बात बताऊं कि जब से LHDC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, आज तक एक भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमें नहीं दिया गया था लंकर से कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो दिया गया हमारे, आप लक समझिए या कुछ भी समझिए, हमारे हुसैन साहब जो कि पहले हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहे, एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहे, उनको ये मौका मिला। लेकिन बदबख्ती हमारी यही हुई, और आप चाहे अगर लंकर से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाके उनसे पूछिए, या उम्बा के अवाम से पूछिए, या उम्बा के यूथ से आप आकर के पूछिए, लाइट जो है 21st सेंचुरी आज चल रहा है सर। आप मीडिया वाले आप हमसे बेहतर जानते हैं कि नेटवर्क का क्या अहम रोल प्ले करता है सर, एक स्टूडेंट्स की लाइफ में, एक मर्चेंट की लाइफ में क्या अहम रोल प्ले करता है। आज तक हमारे पास एक भी नेटवर्क नहीं है सर। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हमारे पास होने के बाद उसके ऊपर तो सीधा CC आता है सर, उसके आगे तो मुझे नहीं पता कि हमारे लीडर को और क्या ओहदा चाहिए था काम करने के लिए, और क्या उनके पास जो है बहाने हैं हमें देने के लिए। छना मैं अगर काहिदर के साथ अगर हम जुड़े हैं तो काहिदर का हम ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। कोई आकर के हमें कहता है कि आप लालच के थ्रू हम गए हैं तो आप काहिदर यहाँ पे प्रेजेंट है। उनके कैंपेनिंग के दौरान ही अगर मैं इनके पहले अपोजिशन से जा कर के पूछा हूँ कि इनकी क्या साबिका रही है, 8 साल बतौर सरपंच इन्होंने जो है इस लंकर से में काम किया है। और अगर अब्बास साहब अगर के सीनियर मोस्ट लीडर है हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 15 साल से ये जो है काउंसलर की कुर्सी पर बैठ करके लोगों की मदद, लोगों की जो है फरियाद पर पहुँचे हैं। और इसी उम्मीदों के साथ ही हम आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के परचम के नीचे आकर के इंशाल्लाह उम्बा को आगे ले जाने, और यही उम्मीद है सर कि हमारा जो है ये रिश्ता एक हेल्दी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और आगे हम इसको ले जा पाए। बिल्कुल ये हमारे आने वाले इलेक्शन की तैयारी समझिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ंस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ हमेशा से रहा है। उसमें से भी हमारे सांको ब्लॉक तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ ही है। इस गढ़ को और मजबूती मिलेगी। हमारे आगा रज़ा साहब ने आज हमारे ज्वाइन किए। सबसे बड़ी खुशी की बात है ये है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमने एक नारा दिया था पिछले साल जब हमारे पार्टी के जब रिशफलिंग हो रहे थे उस वक़्त, कि हम डिस्ट्रिक्ट करगिल के पढ़े लिखे जो जवान हैं उनको हम मौका देंगे पार्टी में। और उसी के और ये जो नारा हमने दिया था, मैंने दिया था, ये सिर्फ मेरा नारा नहीं था। उमर साहब ने उससे पहले जिस वक्त में मुझे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, उमर साहब ने मुझे बुला के लेके वहाँ करगिल के बारे में जब डिस्कस हुआ तो ये उनका नारा था कि वो पूरा रियासत जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जवानों को, ख़ासकर जवानों को मौका देने का उनका एक मिशन है। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने नारा डिस्ट्रिक्ट करगिल में लगाया था कि हम डिस्ट्रिक्ट करगिल के जवानों को, ख़ासकर पढ़े लिखे जवानों को हम पार्टी में प्लेटफॉर्म देंगे, उनको मौका देंगे। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों के बाद जो है इस पार्टी का भागदौड़ जो है वो करगिल के बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे जवानों के हाथों में होगा। उसी के कड़ी में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उम्बा से हमारे जो 5 साहिबान हैं उनके साथ उनके जो लोग हैं वो लोग तो इस पार्टी से जुड़े ही है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आगा रज़ा जैसे एक पढ़े लिखा एक डायनेमिक जवान जो है आज इस पार्टी को ज्वाइन होने जा रहा है। उससे हमें डबल ये उम्मीद है कि इस रीजन में, इस इलाके में जो है पार्टी जो जितना मजबूत था आगे जाके इससे भी मजबूती से जो है पार्टी काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, जो यूथ उम्बा से ज्वाइन कर रहे हैं एनसी, वो एक बहुत ही अहम उम्मीद लेके एनसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उम्बा में अभी भी टेली कम्युनिकेशन नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का खस्ता हालत है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। तो इन चीज़ों पे क्या आपकी पार्टी खड़ा? देखिए ये एक यूथ, एक जवान, ये मैं एक बहुत बड़ी एक बदकिस्मती समझता हूँ कि आज के डेट में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके जो है वो बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनसे महरूम है। ख़ासकर इलेक्ट्रिक का जो बात है, कम्युनिकेशन की जो बात है, ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। बेशक इनका ये जो 2 डिमांड है ये बहुत ही ज़रूरी ये डिमांड है। इन डिमांड के पीछे हम हमारे काउंसिल
के नोटिस में इंशाल्लाह हम सीसी साहब के नोटिस में तो लाए गए ही। इनके इस डिमांड के पीछे हम भी बहुत ही इनके साथ शाना बशाना हम खड़ा रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इनको ये जो पावर जो है पावर से इनको नवाजें। और जो टेलीकम्युनिकेशन की जो बात है उसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी इनको जो है वो टावर वगैरह लगा के इनको पूरा करें। यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा? ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है, बहुत बदकिस्मती की बात है, अगर ऐसी बात हुआ तो करगिल में बहुत बड़ा एजिटेशन होगा। तो गवर्नर साहब से, गवर्नर इंतज़ामिया से हमारे गुजारिश यही है, हमारे जो लीडर साहब, सुबह आपने ये अपना गुलिस्तान न्यूज़ पे हमारे फेरोज़ साहब का भी ये सुना होगा, वो लोग भी कौंसल लेवल पे गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनको करगिल के आवाम का जो है वो उन तक पहुंचाएंगे। हमारे गुजारिश यही है कि इसको रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है, जो करगिल को जो है बहुत ही ज़रूरत, जो यूनिवर्सिटी के वो करगिल को ज़रूरत है। तो यही गवर्नर से गुजारिश है। और एक चीज़, हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो जिस पार्टी से भी रिलेटेड हो, ये एक कौम की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मसला है, इसमें कोई पार्टी और बाजी की बात नहीं होना चाहिए, सबको इकट्ठे होकर जो है इस चीज़ में ये करना चाहिए।